Hello students, today we are going to study poem number 2.5. The name of the poem, as you can see on your screen, it's Father Returning Home. Now, before we start with the poem, children, let's have a look at the poet. Icebreakers will be solving later. Acha, the poet, children, as you know him, Dilip Chitre. He's a very famous bilingual poet. At the same time, children, is a very famous narrator. Marathi, English में उनके poems and his works are quite versatile. Acha, he's not only a poet, children, he's into painting, filmmaking, and at the same time, children, he's a columnist for magazines. अच्छा, उनको साहित्य अकेडमी के अवार्ड से नवाजा गया है. अच्छा, now he's both for poetry as well as the translation work that he carries out, जैसे कि सेज तुका या फिर मराठी तुका म्हणे. सो उनके पॉपुलर अभंग्स वगैरह आते हैं बच्चे लोग. सो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक बाय द एज ऑफ 16 he had started the work of translation. अच्छा, now you will ask me, sir, what is his style of writing basically. So उन्होंने बच्चे लोग ज़्यादातर exile, इस लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सब टर्म्स कुछ मैच करते हुए दिखाई देंगे. एग्जाइल, एलियनेशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आइसोलेशन, वेयर पीपल स्टे आइसोलेटेड, दे डोंट मिक्स विथ अदर पीपल. सो दिस इज हिज मेन टॉपिक, चिल्ड्रन, और हिज मेन थीम, एंड ही राइट्स ऑन दोज थीम्स. So, and death is another important theme on which he writes. Children, this particular poem is actually taken from his collection of poems, that is Traveling in a Cage. It basically tries to describe to us or relate to us, children, the life or the portrait of a suburban commuter. Children, who are commuters? Commuters are basically people who travel through the same route daily. और ये पोएम के जरिए बच्चों लोग इन्होंने डिपिक्ट किया है एक आध व्यक्ति का जो लाइफ होता है, जो बहुत ही ज्यादा डल है, इट्स मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग, एंड यू विल फील पिटी फॉर दैट कैरेक्टर. उनके राइटिंग्स का एक खासियत होता है बच्चों लोग कि वो एक इतना अच्छा इमेजरी यूज करते हैं, और वो जो मेन कैरेक्टर होता है उनके पोएम में या फिर स्टोरी में, आपको एंड तक उसके ऊपर थोड़ी मतलब यू विल हैव पिटी ऑन हिम, यू विल सिंपथाइज हिम. And it describes the forced alienation at home. घर के अंदर बच्चे लोग बूढ़े लोगों के साथ में किस तरीके से बर्ताव किया जाता है. Whenever there is a generation gap, the younger generation and the old generation, where the younger generation doesn't want to mix with the older ones, they don't relate to them properly. और इस चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने stale food या फिर lack of sharing. And see, the children are not very keen on sharing their joys and sorrows with might be their father or the grandfather, and who is actually working very hard. And obviously फिर वो उनके फादर के पास एक ही ऑप्शन रहता है बच्चों लोग, to stay into solitude, that is isolation. And this painful loneliness या फिर isolation फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. तो इंसान ने ये दुनिया बनाई है और इंसान ये दुनिया से ही अलग हो जाता है. मतलब दैट्स लाइक फॉर एग्जांपल ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड दैट ही हैज क्रिएटेड. सो आइसोलेशन ऑफ द मैन फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड. वेरी नाइस एंड कैची फ्रेजेस यूज करते हैं पोएट दिलीप चित्रे. ठीक है. सो एज यू आर अवेयर ऑफ व्हाट द पोएट इज ऑल अबाउट, लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन विद द पोएम. Now, as we begin with the poem, children, we need to know that there are various areas that we have, children. The rural areas होते हैं, then we have got a urban areas, we have got a semi-urban areas, if they are also referred to as suburban areas, suburbs, उपनगर बोलते हैं उसको. जैसे कि those people who stay in Bombay, तो Bombay मतलब mostly like we know Mumbai is basically like Kulaba, that particular South Mumbai. But whenever we refer to places like Jogeshwari, Malad, तो they are called as suburbs, उपनगर, western suburbs करके बोला जाता है. अच्छा, and you people are very aware of the travel by train. और मुंबई के लोगों से ज़्यादा और कौन अच्छा जानेगा कि ट्रेन का ट्रैवल क्या होता है और कैसे हम लोग वहाँ पे स्टंट्स मारते रहते हैं. स्टंट्स इन द सेंस लाइक
मॉर्निंग के टाइम पे चर्च गेट जाना या फिर शाम के टाइम पे विरार जाना, मतलब आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. चिल्ड्रन, I'm going to read it out to you. My father travels on the late evening train. अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको पता चलेगी. वेरी सिंपल स्टेटमेंट चिल्ड्रन, लेकिन जो एक इमेज यूज होता है उसमें आप उसको रिलेट कर सकते हो कि मेरे डैडी जो है वो लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते. अच्छा, ट्रैवल करते हो समझ में आया. दो तीन चीजें यहाँ पे पता चलती है कि वी आर हाईलाइटिंग ऑन दैट टाइम पीरियड ऑफ फादर्स लाइफ विच बिगिंस व्हेन ही started coming home, might be after completing his day's work. तो पूरे दिन भर में उन्होंने जो काम किया है, जिस ऑफिस में वो काम करने के लिए जाते हैं, वी आर नॉट वरीड सो मच अबाउट दैट. वी जस्ट फोकसिंग ऑन टू हिज लाइफ फ्रॉम when he travels to the train. Late evening train. इवनिंग चीजें, इवनिंग यहाँ पे दो चीजों को हाईलाइट करते हैं. चलो, इवनिंग तो टाइम होता है. दूसरा, इवनिंग जैसे कि हमने एक पोएम में रिफर किया था, वीवर्स, इंडियन वीवर्स, मॉर्निंग, देन इवनिंग एंड नाइट. तो इवनिंग चिल्ड्रन, इट इज रिलेटेड टू ओल्ड एज. ठीक है. सो यहाँ पे फादर इज एक्चुअली ओल्ड एज एंड जस्ट बिकॉज ही इज एजिंग, तो उन्होंने यहाँ पे लेट इवनिंग ट्रेन, ये वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ आपको दिखाई देगा. तो शाम की ट्रेन पकड़ के डैडी काम पे से रिटर्न घर की तरफ आ रहे. नाउ स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. अच्छा, ट्रेन के अंदर का सिचुएशन मोस्टली चिल्ड्रन यू पीपल हैव एक्सपीरियंस सम और द अदर वे. और क्योंकि हम लोग ज्यादातर मुंबई में ही पढ़ रहे हैं, सो वी पीपल आर वेरी वेल वर्स्ड विद दैट. साइलेंट कम्यूटर्स, डैडी खड़े. वो ट्रेन के अंदर भीड़ कितनी रहती है आपको भी पता है, जहां पे आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है. कभी कभी वो तीसरे के बाजू में एक जो चौथा सीट रहता है उसके लिए भी हम लोग झगड़ा करते हैं. वो भी मिलेगा तो ऐसे लगता है कि वर्ल्ड वॉर जीत लिया मैंने करके. अच्छा, दूसरी बात, लेकिन कभी कभी लोग भी अलग रहते हैं, मतलब अंदर जगह रहता है फिर भी उनको दरवाजे के ऊपर खड़े रहना रहता है. तो यहाँ पे डैडी है अंदर, तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली है, मतलब उनका लाइफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है. उनको ट्रैवल करते वक्त बच्चे लोग, he has to stand among those silent commuters. क्या बोला देखो, कम्यूटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, साइलेंट. नाउ व्हाई हैव दे रिफर टू देम एज साइलेंट चिल्ड्रन? बिकॉज कि आप अपने काम से इतने बोर हो जाते हो, ये आपका लाइफ इतना मोनोटोनस हो जाता है, हर रोज वही टाइम का, वही ट्रेन पकड़ने का, फिर आजू बाजू में वही लोग रहते हैं. अच्छा, वो आपके पहचान वाले भी होते हैं, बट यू डोंट वांट टू टॉक टू देम. पीपल इन metro cities, they don't bother who is next to you. So though you might be friends, you are like aliens to each other. तो चुपचाप खड़े, no one is interested in other person and they are standing in yellow light. यहाँ पे और एक बात बच्चे लोग, येलो लाइट इंडिकेट करता है क्या? येलो लाइट जनरली फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में होता है. इवनिंग का मतलब क्या होता है, वही वापस से ओल्ड एज. और ज्यादातर फॉर एग्जाम्पल ट्रेन्स के अंदर जाओगे तो इवनिंग के टाइम पे आपको कुछ ज्यादा ही येलो लाइट दिखाई देगा वहां पे. सो हियर लेट इवनिंग बोला था, एजिंग के साथ मैच करता है. यहाँ पे क्या बोला है, येलो लाइट, दिस ऑल्सो मैचेस विथ एज. और कम्यूटर्स कैसे बच्चे लोग, साइलेंट होते हैं यहाँ पे. क्लियर? अच्छा, तो डैडी शाम की ट्रेन पकड़ के घर की तरफ जा रहे. अच्छा, उनके आजू बाजू में जो कम्यूटर्स है, जो सहप्रवासी बोलते हैं उनको हम लोग, वो कैसे है, नॉइजी है क्या, साइलेंट? साइलेंट है. और आजू बाजू में लाइट का कलर क्या है, येलो, जो वापिस से क्या रिफ्लेक्ट करता है बच्चों लोग, एजिंग. नाउ सबर्ब्स स्लाइड पास्ट इज अनसीइंग आईज. बच्चों लोग सबर्ब्स मतलब आजू बाजू में जो स्टेशन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंधेरी, अच्छा देन कम टू जोगेश्वरी, गोरेगांव, फॉर एग्जाम्पल ओशिवरा, मलाड तक आते हो आप लोग. अच्छा, अभी कोई बंदा है जिसने सपोज फॉर एग्जाम्पल चर्चगेट को ट्रेन पकड़ा है and then he wants to get down at Malad. तो बच्चों लोग आपको पता है खिड़की में से बहुत सारे सब स्टेशंस पास होते रहते हैं, लेकिन ये जो सबर्ब्स है ना बच्चों लोग, स्लाइड होंगे. स्लाइड मतलब टू पास. ओके, पास हिज अनसीइंग आईज. लेकिन ये बंदा वो देखता है क्या कौन सा स्टेशन जा रहा है, बाहर क्या नहीं. आपने हर मतलब जिंदगी के 20-25 साल तक आपने हर रोज वही नजारा देखा हुआ है. अच्छा, whenever you are traveling to a new place, तो तभी आप क्या करते हो, आप मस्त खिड़की वाला मतलब विंडो सीट पकड़ के you want to have a look at everything that goes around. लेकिन अगर आप वही रोड से 25 साल से आप हर रोज 2 बार उसी रास्ते से ट्रैवल करो तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ इंटरेस्ट बचेगा उसमें. सो अनसीइंग आईज मतलब
बहुत सारी चीजें अननोटिस जाती है बच्चों लोग। अच्छा, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको पता चलेगी, उसका शर्ट और पैंट बच्चों लोग थोड़ा सा भीग गया है, मतलब मॉनसून की बात होती है। और उन्होंने जो ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ है, इट इज स्टेन्ड विथ मड। स्टेन्ड विथ मड, स्टेन मतलब बच्चों लोग जब हम लोग बारिश के टाइम पे चलते हैं तो अपने शूज की वजह से, चप्पल्स की वजह से बैक साइड में कभी कभी कीचड़ उड़ जाता है, तो जो लाइक फॉर एग्जांपल कीचड़ चींटे उड़ती है उसको हम लोग स्टेन्ड करके बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, उसके कंधे से एक बैग लटका हुआ है विच इज स्टफ्ड विथ बुक्स। बुक्स से भरा हुआ है उसका बैग, एंड दैट बैग इज फॉलिंग अपार्ट। ऐसा लगता है कि बुक्स के वजन के सहारे वो नीचे गिर जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा ही बैग्स है, वो लटक रहा है उसके कंधे से। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर चिल्ड्रन? फर्स्ट ऑफ ऑल, his life is not so cozy as you imagine children. His life might be is full of suffering. हर एक चीज में आपको दिखाई देगा। अच्छा, पैंट और शर्ट उसका गीला हो चुका है। अच्छा, ब्लैक कलर का रेनकोट है लेकिन उसके ऊपर वो कीचड़ उड़ा हुआ है। अच्छा, उसके पास एक बैग है जो बुक से भरा हुआ है। ऐसे ओल्ड एज में बच्चों लोग अपने लिए एक सहारा होता है, बुक्स बुक्स और बुक्स। तो ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, इतने बुक्स है कि उसका बैग नीचे गिर जाए, मतलब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो वो बुक्स में इंटरेस्ट दिखाता है। And his eyes are dimmed by age. एज के साथ आपकी आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती है, आपका जो नजर रहता है बच्चों लोग, इट बिकम्स डिम। फेड होमवर्ड, फेड मतलब बच्चों लोग यहाँ पे धुंधला होना होता है, लेकिन यहाँ पे फेड होमवर्ड मतलब ये अपने घर की तरफ जा रहा है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स हिज होम थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। ह्यूमिड मतलब चिल्ड्रन नमी रहती है हवा में। फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा मुंबई का जो पूरा क्लाइमेट है उसके लिए हम लोग ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं ना, बिकॉज वी हैव अ कोस्टल एरिया। ह्यूमिड मॉनसून नाइट, नाइट को उन्होंने ह्यूमिड बोला है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वो बारिश हो रही है, बाजू में समुद्र है, तो हवा के अंदर हमेशा आपको थोड़ी नमी मिलेगी। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अभी मैं देख सकता हूं कि वो ट्रेन से नीचे उतर रहे, गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अच्छा, जैसे ट्रेन से नीचे उतरते, लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। क्या कंपैरिजन किया है, क्या इमेज यूज किया है, देखो बच्चों लोग। जैसे एक लंबा सेंटेंस आता है और उसमें से एक आध छोटा सा वर्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन वो सेंटेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेंटेंस वैसे ही रहता है। वैसे बच्चों लोग यहाँ पे एक लंबा सा ट्रेन, और ट्रेन में से एक आदमी नीचे उतरता हुआ दिखाई देगा आपको, लाइक अ वर्ड दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। So that man getting down from the train is compared to a word dropped from a long sentence. लंबा सेंटेंस है ना ट्रेन, और एक वर्ड नीचे गिरना मतलब आदमी नीचे उतरना। He hurries across the length of the grey platform. Hurries मतलब बच्चों लोग शहरों में रहने वाले लोगों का लाइफ आपको पता है, सिर्फ हम लोग क्या करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं बच्चों लोग। We don't have any peace. अच्छा, the length, length मतलब बच्चों लोग लॉन्ग, यहाँ पे ग्रे प्लेटफॉर्म। ग्रे प्लेटफॉर्म, दो तीन चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी बच्चों। ग्रे मतलब वो सीमेंट कंक्रीट का होता है, इसकी वजह से ग्रे। ग्रे चिल्ड्रन ऑल्सो रिलेट्स टू एज, बुढ़ापे को हम लोग ग्रे करके बोलते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है बच्चों लोग, क्योंकि उसकी आंखें इतनी धुंधली हो गई थी कि उसको सब कुछ ग्रे दिखाई देता है वहां पे, मतलब वापस से वो बूढ़ा हो रहा है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर घाई गड़बड़ी से चलते जा रहा है। He crosses the railway line and enters the lane. तो रेलवे का लाइन क्रॉस करके वो वहां पे साइड में प्लेटफॉर्म से उतर के नीचे उतरते फिर एक गली में आपको रास्ता मिलता है, वहां पे वो चला जाता है। एंड ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उसकी चप्पल जो चलो कीचड़ में से चलने की वजह से स्टिकी हो चुके हैं, और चलते हो आपको कभी वो चप्पल्स का कुछ साउंड वगैरह भी महसूस हो सकता है, क्योंकि उस पे कीचड़, ज्यादातर कीचड़ में चलने के बाद आपको पता है कि लाइक मड कैचेस विद द चप्पल एंड इट मेक्स सम साउंड। हाँ, लेकिन उसको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हरीज ऑनवर्ड, उसको घाई है घर पे जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। घर पे आने के बाद आप देख सकते हो कि इंसान चाय पी रहा है। अच्छा, जैसे चाय पी रहा है तो उन्होंने चाय के लिए एक वर्ड यूज किया चिल्ड्रन, व्हाट, वीक। वीक मतलब क्या, मतलब दुबला बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, वीकनेस। अच्छा, लेकिन यहाँ पे टी को उन्होंने वीक वर्ड क्यों यूज किया है, शायद आपको अगले लाइन से इसका मीनिंग पता चले। ईटिंग अ स्टेल चपाती एंड रीडिंग अ बुक। अभी भी वो बंदा क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज हैविंग स्टेल चपाती, बासी चपाती खा रहा है बच्चों लोगों। और दूसरा
टी, कड़क चाय बोलते हैं हम लोग, यस, लेकिन यहाँ पे उसका ऑपोजिट वीक, तो माइट बी फॉर एग्जाम्पल कब बना के रखा गया था पता नहीं, उसमें थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्गनेस नहीं है उसमें, मतलब इनडायरेक्टली चिल्ड्रन उसको, ये बंदा द होल डे ही हैज स्लॉग्ड इनटू हिज ऑफिस, इज कमिंग हिज होम, कोई उसको एकदम कड़क चाय बना के देने के लिए या फिर फ्रेश चपाती बना के देने के लिए कोई नहीं है, तो वो वीक टी पी रहा है एंड ही इज ईटिंग अ स्टेल चपाती, और साइड बाय साइड वो क्या कर रहा है, ही इज ऑल्सो रीडिंग अ बुक जो शायद उसके कंपेनियंस है। देन ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट, देखो बच्चों लोग मिडिल क्लास पीपल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल लाइक जब लोग आइसोलेशन में जाते हैं, जब लोग घर के अंदर आपको एंटरटेन नहीं करते, जब कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू, तो फिर पता है बच्चों लोग सबर्बन एरियाज में, मुंबई जैसे शहरों में एक जगह होती है जहां पे लोग बहुत ज्यादा सोचने का काम करते हैं, एंड दैट इज टॉयलेट। एंड व्हाई डज ही गो देयर चिल्ड्रन, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट मतलब यहाँ पे होता है बच्चों लोग थिंकिंग वेरी डीपली, गहरी सोच में डूब जाता है वो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी बोलते हैं कि लाइक ज्यादातर बड़े बड़े आइडियाज भी उसी जगह पे निकलते करके। सो टॉयलेट हियर इज रिफर टू एज अ प्लेस वेयर दिस आइसोलेटेड पर्सन, जो एलिनेट हुआ है, जो बाकी लोगों से अलग है एकदम, वो वहां पे जाके सोचने का काम करता है। अच्छा, किस चीज के बारे में वो डीपली सोच रहा है, मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, वेरी नाइस सेंटेंस चिल्ड्रन, एक आदमी को हमने अलग किया है उसने ही बनाई हुए दुनिया से। एस्ट्रेंज मतलब अलग करना, आइसोलेट करना, एलिएनेट करना, ये दुनिया किसने बनाया? चलो ऑब्वियसली वी हैव मेड दिस वर्ल्ड, बट वी पीपल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस वेरी वर्ल्ड विच वी हैव क्रिएटेड, सो मैन मेड वर्ल्ड। अच्छा, जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकलता है चलो वहां से, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। ट्रेम्बल मतलब चलो दो तीन चीजें होती है, वन इज लाइक यू नो शिवरिंग, शिवरिंग मतलब क्या होता है चलो कांपना, लेकिन वो कोल्ड से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू फियर, माइट बी वो बूढ़े लोग रहते हैं उनका पूरा बॉडी कभी कभी शेक करता है, माइट बी विद द ओल्ड एज। सिंक क्या होता है बच्चों लोग? वॉश बेसिन। अच्छा, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर इज ब्राउन हैंड्स, और वॉश बेसिन के वहां पे ठंडा पानी बच्चों लोग उसके ब्राउन कलर के हाथों के ऊपर से पास होते रहता है। अच्छा, ब्राउन हैंड्स अगेन चिल्ड्रन माइट बी द ओल्ड एज दैट वी आर फोकसिंग ऑन टू हियर। A few droplets cling to the graying hair on his wrists. कुछ पानी की बूंदे, जब वो टैप ऑन करता है, अपने हाथ धोता है, तो कुछ पानी की बूंदे क्लिंग होती है। क्लिंग इज लाइक टू स्टिक, पकड़ना। कहां पे पकड़ लेते बच्चों लोग? उसका जो रिस्ट होता है ना, रिस्ट, उस पे कुछ बाल है बच्चों लोग, हेयर, और वो भी कौन से कलर के हो चुके हैं? ग्रे। वहां पे कुछ पानी की बूंदे पकड़ लेती है रिस्ट पे, वो वापिस से वही ग्रेइंग हेयर करके बोला है, it indicates that he is getting very old now, ठीक है। and his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उनके घर पे बच्चे हैं, लेकिन कौन सा adjective यूज हुआ है चिल्ड्रन? sullen is like bad tempered. bad tempered is like you know they are not very friendly with their father. चलो जनरेशन गैप, बूढ़े हो चुके हैं डैडी, अभी उनकी जरूरत नहीं है ना। अच्छा, तो वो हमेशा इनकार करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, इसके लिए टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। तो अपने डैडी के साथ कोई जोक या फिर कोई सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहते, मतलब वो लोग अपने डैडी से बात नहीं करते, डोंट टॉक विद हिम। ठीक है, अभी क्या बच्चे लोग, ही विल नाउ गो टू स्लीप, सो जाएंगे वो अभी। स्लीप माइट बी नॉर्मल स्लीप या फिर माइट बी अ फ्यू डेज ऑन एंड ही माइट डाई लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। लिसनिंग टू द स्टैटिक करके बोला बच्चों लोग यहाँ पे, ऑन द रेडियो। इट मीन्स कि लाइक फॉर एग्जाम्पल सी समटाइम्स वो चुपचाप बैठ के ऐसे सुनते रहते हैं, तो माइट बी चिल्ड्रन रेडियो इज नॉट स्टैटिक, दिस मैन इज स्टैटिक। स्टैटिक इज लाइक विदाउट मूवमेंट, और वो रेडियो को सुनते सुनते बच्चों लोग वो थोड़ा सपनों में खो जाता है, इज लॉस्ट इन टू ड्रीम्स। सो ड्रीमिंग, अच्छा ड्रीमिंग ऑफ वॉट? ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। किसके बारे में सोच रहा है? अपने पूर्वजों के बारे में, अपने दादा परदादाओं के बारे में। एट द सेम टाइम वो अपने पोता पोती जो रहते बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बारे में भी सोच रहा है। एंड थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास।
सो सब कॉन्टिनेंट बच्चे लोग अपना एशियन सब कॉन्टिनेंट आता है, वहां से खैबर पास बोलते हैं ना अंदर आने के लिए, जो नोमैड्स होते हैं बच्चे लोग, भटकने वाले लोग एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं, तो किस तरीके से उसके एंसेस्टर्स ये नैरो पास में से सब कॉन्टिनेंट में आए थे उसको याद आता है। अच्छा, लेकिन अभी जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो उसको यहाँ पे बच्चे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही उसके बच्चे ना ही उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, सो दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड टू इन हिम, सो ऑब्वियसली ही कीप्स ऑन रिमेंबरिंग हिज एंसेस्टर्स जो बहुत साल पहले यहाँ पे आके बसे हुए थे। माइट बी, या फिर ऐसे भी हो सकता है बच्चे लोग कि जो उसके अपने खुद के लोग हैं, जो अपने खुद के लोग हैं जो उसको कीमत नहीं देते बच्चे लोग, दे डोंट केयर फॉर हिम, बट माइट बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो अपने नहीं होते हैं, मिलते हैं लेकिन फिर कभी अपने बन जाते हैं, छोटे से रास्तों से अपने दिल तक पहुंच सकते हैं ऐसे लोग, है ना। जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं बच्चों लोग, कभी कभी सामने वाले सीट पे वही इंसान आपने 10 साल से उसको ट्रैवल करते हुए देखा है, आपको उसका नाम तक पता नहीं, लेकिन ही फील्स लाइक इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में जगह बना के जाते हैं, ठीक है। सो द पोएम एंटायरली चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज and might be the problems that we face in the old age, might be everyone comes through that, but here this isolation, alienation, monotonous life बच्चों लोग हर रोज, जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन जब हम लोग छोटे होते हैं और डैडी काम पे से वापस आने वाले रहते तो वो जो एक्साइटमेंट रहता है ना, क्या लेके आएंगे, फिर मैं उनके साथ में खेलूंगा, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और जब डैडी घर पे आते हैं तो हम लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो शायद हम लोगों को उनको थोड़ा केयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे उन लोगों ने हम लोगों को केयर किया था व्हेन वी वर स्मॉल, तो ध्यान रखना है कि जब आप ग्रोन अप होते हो तो ओल्ड पेरेंट्स को हम लोग उतना ही केयर करना चाहिए जितना कि उन्होंने हमको केयर किया था व्हेन वी वर यंग। सो अ स्मॉल चाइल्ड एंड अ वेरी ओल्ड पर्सन, देयर लाइव्स आर क्वाइट सिमिलर चिल्ड्रन, दे नीड अटेंशन, दे नीड लव, दे नीड केयर ऑफ द पीपल अराउंड। क्लियर? Yes, that's the summary of the poem children that I told you. ठीक है, we'll meet again with the next lesson in the coming lecture. Okay, as far as children ice breakers are concerned, अच्छा जो भी exercises बैक साइड में दिए हुए हैं ये मैं सब आपको सॉल्व करा के दूंगा। प्रेजेंटली हम लोग सब समरीज डिस्कस करें, सब पोएम्स का एप्रिसिएशन, ग्रामेटिकल पार्ट चिल्ड्रन, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, तो वी विल जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा ग्रामर भी इंट्रोड्यूस किया था आपके लिए, टॉपिक्स, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग थोड़े थोड़े ग्रामर के टॉपिक्स भी स्टार्ट करते रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।